we try to have one free webinar so that you can attend and get more educated, or all of you can take informed decisions. हम महीने में almost close to 3 या 4 webinars करते हैं free of cost. इसमें आपको एज ए उपभोक्ता आप को अवेयर किया जाता है कि कौन से डिसीजंस आपको लेने चाहिए एज ए कंज्यूमर, सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड, जो हमने उनको सिखाया है और कैसे उनको सक्सेस मिल रहा है, और इंट्रो टॉक्स होता है इसमें हम कोर्स प्रोग्राम के बारे में भी बात करते हैं. आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अबाउट जो हमारे गेस्ट हैं, about his journey and how we can get more educated on what's on our plate. कि रोज आप भोजन जो परोस रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है और कितना सही हो सकता है. With this, I think I will hand this over to Binay ji to initiate the program with our prayers and Om chanting. Over to you, sir. Welcome to the program. थैंक यू. सब लोग कंफर्टेबल है ना? अपने घर में बैठे तो फिर कंफर्ट की क्या बात है. भाषा में हिंदी चलेगा या अंग्रेजी का मिश्रण चाहिए, और यू वांट बोथ? यू कैन मैसेज. सो लेट्स सीधा बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं. विल क्लोज आवर आईज. The wise one have said and practiced, anything good should be started with that sound which was the reason for this creation. उस ध्वनि से जिस सृष्टि की शुरुआत हुई, जिससे सृष्टि बनी, उस ध्वनि का उच्चारण करके कुछ कार्य का शुभ आरंभ करें तो वो फलित होता है. As we have closed our eyes, let's make our spine a little more straighter. रीढ़ को थोड़ा और सीधा करते हैं. As if you are breathing in and out from the bottom to मूलाधार से सहस्रार तक आपकी सांसें चल रही हैं रीढ़ की हड्डियों में. गोकर्ण बन जाते हैं अगली एक के लिए. For another 1 hour, let's sit like a Gokarn with all our senses together. This time, as we breathe out, let's chant Omkar. ओंकारं बिंदुसं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं क्षदं चैव ओंकाराय नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम् शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं
करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाने आत्मज्ञान प्रदाने तस्मै श्री नमः। आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरवे। For the eyes closed as we are awake, the mind needs to be calmer. The breath needs to be quiver free. इस अवस्था में आंखें बंद हों, उसके लिए मन का शांत होना, सांसों का सुलभता से परिचालन करते रहना आवश्यक है। और मन की शांति और सांस की सुगमता हमारे पाचन पर आधारित होती है। The better the digestion, the calmer the mind and sharper the brain, the intellect. But this era where we tend to buy everything apart from money, we earn money and buy everything else. The quality of the grains, especially the edibles, have gone for a toss to great extent. काफी हद तक हम जो खाते हैं, हमारे खाद्य गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। And that is where our health, more so of our coming generation, is the health of theirs is also not that great. That is why we to have an open discussion with a person who took a decision to the habit of cooking, to change the habit of buying, and everything else which adds value to something called the health. इसीलिए इस चीज पर बात करने के लिए हमने एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है, ऐसे इंसान को बुलाया है जिन्होंने एक निर्णय लिया जहां खाना बनाने के तरीकों में बदलाव, जो भोजन हम खरीदते हैं उसमें बदलाव, और बहुत सारी संबंधित चीजों, ताकि परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसमें वृद्धि हो जाए। And by doing so, he could reach to many farmers, to many consumers, and successfully could connect them, उन सबको जोड़ के किसानों को और जो खरीदने वाली जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उनको जोड़ने का काम किया। Coming from a background of technology and teaching and so many things like most of us, unlike me, he had been very, very deep into the techniques and technology. And after finishing the education, he went into teaching, the digital marketing, the content writing, so many things, so many related things, the topics which are hot in market today. And before I invite Mr. Vilas Srinivas, we all can open our eyes if it is still closed.
जेंटली, इससे पहले कि मैं हम स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर आए, अगर आपकी आंखें बंद हैं मेरी तरह तो धीरे खुल सकते। नूतन जी, अभिलाष को होस्ट बना दें, अनम्यूट हिमसेल्फ। यस। सो अभिलाष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम यू टू आवर फोरम। यू नो, वी हैव got into a habit of talking about everything which adds value to the of life, more so the health. And we keep talking about different ingredients which are needed, right from the milk to the food to the growing aspect of it, and awareness, more so like awareness. And that is where all these people have come to hear you. Uh, to start with, if I may, then I would uh, like to know your journey. How did it start? What was the inspiration behind the story? You know, people get inspired by the cause and the story. Information we are overloaded in this YouTube and Google. Everyone is overloaded with information. No one wants to listen that. तो आपकी स्टोरी क्या रही, कहाँ से ये, कैसे, मतलब जी, जय गुरुदेव भैया जी, एंड सभी भाई बहनों को जो अपने कीमती समय उन्होंने निकाला और इस सेशन में आए। जो भैया जी ने पूछा कि मेरी कहानी क्या है, मेरी कहानी कुछ 2016 में शुरू हुई, जब मेरे बच्चे के साथ उनके पेट में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। उनके पाचन शक्ति में थोड़ा सा कष्ट हो रहा था। ही वॉज जस्ट वीनिंग आउट फ्रॉम हिज मदर्स मिल्क, एंड कमर्शियली अवेलेबल मिल्क को हम अपना रहे थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके, मेरे बच्चे के पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही थी, और कांस्टेंट आफ्टर एवरी मील ही यूज्ड टू पास मोशन, एंड पेट में बहुत दर्द हुआ करता था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह, एंड जाने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर बोलता है कि हमारा बच्चा जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। आर चाइल्ड वाज लैक्टोज इंटॉलरेंट। मेरी मेरी जो परवरिश हुई है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है, पूरा पूरा जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बनारस और दिल्ली में हुई, और कम से कम 8-10 साल मैं बनारस में रहा, गाय माता नंदी देव के आसपास रहा। रोड पे तो हमारी गौ माताएं बैठी रहती हैं। आदमी जो बनारस और काशी में अगर व्हीकल चलाते हैं तो गाय माता को डिस्टर्ब नहीं करते, बाजू से निकल जाते हैं। दे जस्ट डोंट डिस्टर्ब गाय माता और नंदी देव, दे जस्ट मूव आउट। सो Yes. तो हम उस जगह से आए हैं, हम वहाँ पे पढ़े हैं। तो for a person like me, I never heard this term called lactose intolerance in the year 2016. I was not aware of it, what it was, and मेरे लिए बहुत नया था। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको आप दूध, दही और दूध से बनी हुई एलाइड चीजों को बंद कर दीजिए। मैं बोला दूध बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या बच्चे? तो उन्होंने बोला कि सोया मिल्क लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। मैं बोला देखिए इस चीज को मैं मानता नहीं, और मैंने अपना रिसर्च शुरू किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे खाने के साथ हो रहा है, क्योंकि हमने बचपन से, दशकों से, सेंचुरीज से हमने हमने दूध पिया है, और दूध के एलाइड प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्खन हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इन सबको हमने सेवन किया है, बट कभी दूध को मना नहीं किया। तो कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग व्हाट इज बीइंग डन टू द फूड, there's something being done to the food that is not making us digest it properly. So इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, इस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, अपने घर के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैं निकल पड़ा अपने भाई बंधुओं से बात करने के लिए, और अपने गौशालाओं से बात करने के लिए। तो हमारे कुछ इस्कॉन के कुछ डिवोटीज थे, तो उन्होंने बताया कि भाई देसी गौशालाओं से जो दूध आता है, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते? अगर उसको ट्राई करेंगे तो देखिए शायद वो लैक्टोज इंटॉलरेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा शायद। तो फिर कुछ some there were some friends of ours who were having goshalas, or
the reach was there, and then we were staying in Yeshwanthpur in Bangalore, and the milk used to come from Kanakpura, and all the way, then it was around 120 rupees per liter. Though I was not very sure about this choice, but I was not left with any other option. So I said, okay, ye bhi try kar lete. We will try this as well. Let's see. So we took the decision of paying 120 rupees and take this 1 liter of milk, देसी काउ मिल्क, गाय माता के अमृत को लेने का हमने डिसीजन लिया, और देखा कि विथिन अ स्पैन ऑफ 4 weeks, दैट इज 1 month, 1.5 month, मैंने देखा कि मेरे बच्चे के पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, डाइजेशन, इंडाइजेशन, कांस्टेंट स्टूल पासिंग, पेट दर्द, और भी बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई, और उसका डाइजेशन पावर बढ़ने लगा, खाना मांगने लगा, ही यूज्ड टू फील हंग्री। एंड हमने समझा कि भाई अगर किचन में एक इंग्रेडिएंट अगर हम बदल दें, दैट इज फ्रॉम कमर्शियली अवेलेबल मिल्क टू देसी काउ मिल्क, और अगर एक छोटे बच्चे में इतनी सारी चेंजेस हो सकती हैं, और मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है, वो कुछ 4, 5, 6 लैंग्वेजेस में बात करने लगा अपने छोटे छोटे जो सोसाइटी में बच्चे होते हैं, इंग्लिश हिंदी, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा. He was in a position to speak sentences and speak very clearly. उसके एज के बच्चे जो 3 साल के 4 साल के बच्चे थे, वो लोग स्टेटमेंट्स भी बात नहीं, वो लोग शब्द भी सही से बात नहीं कर पाते थे. यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स पूरा बात कर रहा था in 4-5 different languages, which was very astonishing for me. And I felt and then हम गए डॉक्टर के पास, उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपके इस चेंज से बच्चे को हेल्प हो रहा है, with this particular change, if the child is able to handle things and उसका digestion power अच्छा हो रहा है and all these problems are vanishing, then please go ahead and keep this change, इस चीज को आगे बढ़ाइए. और हमने देखा कि अगर एक छोटे से एक सिंगल इंग्रेडिएंट के बदलने से अगर किचन में हमारे बच्चे में अगर इतना चेंजेस अगर आ सकता है, तो डेफिनेटली इफ वी start focusing on changing other ingredients in our kitchen and moving to sattvic or chemical free food, or moving towards more nutritious food which can help our body to not fall sick, or I will say keep us healthy for a long time, then it can be a revolutionary aspect. But उसके लिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है, because I was like any other consumer, बाहर जाता था, सब्जी, फल, तूर दाल, राइस, जो भी मिलता था लेके आता था. सो अगर हर चीज को केमिकल फ्री बनाना है, या फिर पेस्टिसाइड्स फ्री बनाना है, या फिर प्रिजर्वेटिव्स फ्री हमें अगर घर लेके आना है, तो उसके सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, उसके राइट पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, जो हमारा फार्मर है, जो हमारा किसान है. तो इस तरह से हमारा जो जर्नी है चालू हुआ मेरे बच्चे के हेल्थ को इम्प्रूव करते करते हुए. Yes, it's such so astonishing, no? इतना मतलब जबरदस्त. थोड़ी हम इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं ना, ये advertisement and all these products that are being sold by all that through TV and internet. तो हमको लगता है जो फ्रोजन है वो फ्रेश है, जो सर्टिफाइड है, जिसके ऊपर पैकेजिंग डेट है वो बढ़िया है, एंड ऑल दैट. एंड मिल्क इट्स सच, हमने दूध के ऊपर एक वेबिनार किया था लास्ट कुछ हफ्ते पहले. तो ये एक रियल स्टोरी है कि हम माँ का दूध पी के हमारी जिंदगी शुरू, we start the life with the mother's milk, and here comes after a month or so, doctor says it's lactose intolerant. I mean something wrong factually, and where that is where we say गाय को माता इसीलिए बोलते हैं. Why the cow is treated as mother is that the mother's milk and the cow's milk, desi cow, the Boston has no much difference, and result oriented. हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमारा रिजल्ट अच्छा उस चीज को खाने से, किसी चीज को पढ़ने से, किसी चीज को पहनने से, अगर सब कुछ रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो बस ठीक है ना. पौधे में भी ऐसे हम कहते हैं हमेशा कि टमाटर आ रहा है अच्छे से, डोंट वरी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, दैट्स नॉट योर जॉब, So it's that's where people connect to the stories, and your story is so inspiring.
तो ये तो दूध की बात हुई और वो कहानी की शुरुआत वहां से हुई। आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, जब जागरूकता की बात आती है, तो व्हाई इज दैट नेसेसरी कि लोगों को ये जानना चाहिए कि मतलब उगाते हैं नहीं उगाते हैं, ये सब अलग हो सकता है बात, बट फैक्ट्स जानने, वो चीज के बारे में जिसके बेसिस पर आपका स्वास्थ्य बनता है ना। स्वास्थ्य एक संस्कृत का शब्द है, कहते हैं स्व होना, और स्व में अस्त होना इज मल्टी डायमेंशनल एंड स्टार्ट्स विथ अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं करेक्ट। लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले अपने कुछ मित्रों से मिल रहा था, वो मिलने आए थे। मैंने कहा देखो, पेट्रोल रन मशीन में कभी डीजल डाला है क्या? डीजल वाले में केरोसिन डाल के चला है क्या? नहीं ना। वहां तो बड़े साइज रहते हो। बैटरी वाले में थोड़ा डाल के देखो, कुछ बैटरी में उसमें चापाकल का पानी डाल के देखो, वहां तो बड़े एकदम फिक्स है कि हमको यही लेना है। ये शरीर की बात आती है, बड़ी गाड़ी है, सारी गाड़ियों की तरह कुछ भी डंप कर देते हैं। दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारा शरीर नेचुरल है, नेचुरल चीजें डालो। तो दैट इज वेयर द सेकंड क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड फॉर यू, दैट व्हाई डू यू थिंक कि ये सारी चीजें जाननी जरूरी है? किस हद तक गड़बड़ियां आ चुकी है? इफ यू कैन फोकस बिट ऑन दैट। देखिए, इन सब के बारे में जानना है तो जानकार तो एक ही है या दो है। या तो आप गौशाला चले जाएं या फिर आप किसान के पास चले जाएं। गौशाला गौशाला गौमाता के शरण में आप जाएंगे तो काफी सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी ऑटोमेटिक। आप सेवा कीजिए वहां पे, थोड़ा वक्त बिताइए। और अगर आपको गौशाला या फिर गौशाला पास में नहीं है तो आप अपने 40-50 किलोमीटर की दूरी पे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो केमिकल फ्री, क्या बोलते हैं, औषधि फ्री जो है वो उगा रहे हैं। If you really want to understand what is happening at the grassroots level, you need to meet your farmer. You need to go there and talk to him or her, what they are doing, how they are trying to do the kind of farming what they are doing, and उनके उनके मुंह से जब आप सुनेंगे कि भाई क्या क्या होता है केमिकल फार्मिंग में, तो अचंभित हो जाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है। मेरे मेरे पेट पे रोज इतना 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 पॉइजन परोसा जा रहा है जो मेरा सिस्टम है वो हैंडल नहीं कर सकता है। फिर भी फिर भी हमारा सिस्टम हैंडल करता है, माफ करता है, एब्जॉर्ब करता है। कर करके 10 साल में आदमी जो है खोखला हो जाता है और फिर एक एक करके जो है ऑर्गन फेल होना शुरू होते हैं। तो इन सब चीजों का एक ही मूल है, दैट इज द फार्मर। तो आप जाइए, आप अपने फार्मर के पास जाइए, या आप फार्मर्स का एक कम्युनिटी है आप बनाइए, या फिर आप ढूंढिए अपने फार्मर को अपने सिटी के नजदीक जो भी है, या फिर अर्बन फार्मर्स होते हैं, या फिर 30-40 किलोमीटर की दूरी पे जो फार्मर्स हैं उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए। अपने फैमिली के साथ जाइए, उनके खेत में कुछ कुछ समय बिताइए। उनके जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, जब सोइंग सीजन होता है, उनके उनके पास जाके उनके साथ काम कीजिए। तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई what it takes to be a farmer, what it takes to grow the food, and what it takes to grow food non-chemically। कितना काम होता है, कितना कितना वक्त लगता है, कितना कितना मन से काम करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो आई वुड सजेस्ट all the consumers to either form a community or go forward individually to meet your farmers in your own city or in the city outskirts. It's such a amazing thing, Vilas. Somehow, people claim, blame me that you talk a lot about the problems, that ye gadbad hai, wo gadbad hai, and when it comes to solution, there are very, tiny bit of solution available. And but I want to appreciate for you that you started with giving the solution, कि ये गड़बड़ है, but what to do? Like कहते हैं प्लास्टिक मत यूज करो, तो फिर प्लास्टिक नहीं करते, उसका रिप्लेसमेंट क्या है, क्या करना है, उसके बदले सब्जी लाएं क्या, किस चीज में, तो problem with a solution is the real thing to talk about. I see at in a two-way road, like हम एग्रीकल्चर में भी बेसिकली क्या है, आपका प्रोफेशन है ना, आप घुमा फिरा के उसी चीज की बात करोगे। तो फॉर ऑलमोस्ट a decade, I'm practicing here at the campus of Art of Living. We run our permaculture farm and all that. The community we have, we people know that. So there I say कि agriculture is a two-way road, growing and selling. Yes. Fail in growing, they fail in selling. And the worst thing what we have done as a community, that expect the farmers to be sellers. यार आप डॉक्टर हो, हम आपको कहाँ कहते हैं कि हमारी कार फिक्स कर दो, हम आप
किसान का काम उगाना, आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते बस हो? You know, like that, when it comes to be a perfect consumer, being in a city is not a sin. ये कोई पाप नहीं है, शहर में रहना है, गांव को भी रहना है। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी जो हुआ है उसमें, let's have the awareness first कि who has gone wrong, and when you know जी that, then automatically, like these kind of webinars, we have the media, we have the ways and means to get to the right source. Once you know the problem, then you get to the solution. So जी I remember you talking to me ki, I know that you are procuring a lot of varieties of rice. जो लोग भी just for your information, I tell you that he has amazing, Abhilash has amazing, after he did his art program, I think he's in our community there in permaculture thing, you'll be seeing he's an amazing content writer. He keeps writing. After he did our programs and all that, after that he's continuously writing, and people love it. It's like perfect thing to. So when I started talking with Abhilashi about rice, which is one of the main ingredient, not only in India, all over the globe. 70% of the grains grown in this world are just 4 grains: rice, wheat, maize, and soya. And out करेक्ट of 70% is rice. करेक्ट So, rice you can't be without. उसके बिना चलेगा नहीं. But India, कहते हैं ना, देवभूमि है. We were blessed with more than 1 lakh varieties of rice right now. Even after so much of destruction from all the dimensions, all the corners, we still have 1,400 varieties. And this chap is having access to some of the amazing native varieties of rice which are not grain, they are medicines. और उन्हीं चावलों को देख के हमें ये अपने पूर्वजों की कहावतों पर बड़ा भरोसा है, जो कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू ईट। वैसे चावल खा के ना बच्चा 5 लैंग्वेज तो जरूर बोलेगा, ज्यादा भी बोलेगा, कम क्या बोलेगा। सो बट व्हाट कंटामिनेशन has come into our grains, especially in rice, or cooking habits में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। You remember we were talking about aluminium thing and all that. If you can just talk for a minute or something, on that angle. जी भैया जी। तो भैया जी ने बोला कि कंटेंट राइटिंग का काम जो है वो करता हूँ, लिखता हूँ। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग ने एक बात बोली थी। मार्टिन लूथर किंग once he said that if you really want to change the world, pick up the pen and write। तो मैं उस चीज को बहुत बिलीव करता हूँ। तो जो क्या मन की बात है। भावनाएं तो मन की भावनाएं हैं, जो whatever I feel very strongly, I try to inculcate in the form of writings, and try to post it in different various groups wherein people are talking about health, people are talking about different types of changes, but fundamentally अगर आपको behavioral change करना है तो आपके value system में change होना जरूरी है। तो जैसे भैया जी ने बोला, like विनय भैया mentioned that lots of varieties of are there. There was once upon a time in Mahabharata times in India, आपके पास 2.5 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज ऑफ राइस हुआ करती थी। और ये भी बोला जाता है कि अगर आप आज एक वैरायटी ऑफ राइस खाएंगे तो आप उसी वैरायटी ऑफ राइस पे आने के लिए 500 साल लग जाएंगे। 500 साल। So if today you are eating one type of variety of rice, again to come back to same variety of rice, you will take 500 years. That is the amount of variety and diversity of rice what we used to have. But currently there are only 5,500 varieties of rice which are available, and hardly 40-50% of it is in circulation. Yes, there are 5,500 varieties of rice which are there with seed savers, but उसमें से कितने circulation में है ये भी important है हमें जानना। तो एज अ कंज्यूमर अगर मैं उन 5,500 वैरायटीज ऑफ राइस को अगर मैं नहीं कंज्यूम करूंगा या फिर फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो वो जो सीड वैरायटी है वो विलुप्त हो जाएगी। हम भारत में सोना मसूरी बिरयानी का राइस और what is that called, हाँ बासमती राइस एंड ऑल दोस थिंग्स। बट हमारे भारत में हर ज्योग्राफी के लिए एक राइस हुआ करता था। हर ज्योग्राफी हर 50-60-70 किलोमीटर के लिए एक राइस हुआ करता था। फॉर एवरी इल व्हाट अ ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरगो और इज अंडरगोइंग देयर वाज अ राइस। आप नहीं मानेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए एक राइस है, खून की शुद्धि के लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए एक राइस है, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक राइस है, डायबिटीज के लिए एक राइस है, जुलाब के लिए दैट इज डायरिया के लिए एक राइस है,
प्रेग्नेंट मदर्स के लिए एक राइस है, बच्चों को वीन आउट करने के लिए, मदर्स मिल्क से वीन आउट करने के लिए एक राइस है। इतने सारे वैरायटीज ऑफ राइस हैं। आपको जो भी बीमारी है, डेफिनेटली देयर इज वन वैरायटी ऑफ राइस व्हिच कैन हेल्प यू टू फ्री योरसेल्फ from the medicines as well as from the health concerns. तो अगर आप उस व्याधि से, उस हेल्थ इशू से अगर आप हटना चाहते हैं, तो अपने राइस की सहायता से आप उसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो जैसे कि नवारा हो गया, नवारा राइस इज नोन फॉर डायबिटिक, फॉर हेल्पिंग पीपल टू मूव आउट ऑफ डायबिटीज। रक्तशाली राइस is the rice variety which helps people to purify their blood, or to handle blood impurities. Thuyamali rice, जो white rice variety है, Thuyamali, THOOYAMALLI, Thuyamali rice, that is again from Tamil Nadu region. Navara is from Kerala region. Raktashali, I think I'm not sure from which area it is. Thuyamali rice is for people who are having B12 deficiencies, जिनको nervous system का issue है, जिनको anxiety है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, योगा मेडिटेशन सेंटर्स वाले इन चीज़ों को सजेस्ट कर सकते हैं। Thuyamali rice. Pungar rice, POONGAR, Pungar rice is for people, or for women, especially for women. That itself is called as women's rice. Pungar rice is for women who are having hormonal imbalances. हमारी एक बहन है जो नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं, 20-21 साल की हैं, उन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उन्होंने उनका प्रॉब्लम था, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था। उन्होंने 6-7 महीने लगातार हर दिन यही राइस खाया, पुंगर राइस, POONGAR, पुंगर राइस खाया, और उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा उनको आराम मिला है, एंड शी इज आउट ऑफ हर मेडिसिन्स। सो जिन को प्रॉब्लम है, स्पेशली नवारा तो बोलते हैं राइस दैट क्योर्स, सर्व रोग निवारण, नवारा राइस इज कॉल्ड दैट। सो अगर आप ऐसे राइस वेराइटीज को अगर आप हर दिन प्लेट में रखेंगे और खाएंगे, और इफ यू प्रे टू योर ऑलमाइटी, एंड देन वो भावना, जो प्रेम की भावना है, जो भक्ति की भावना है, अगर उससे खाएंगे, डेफिनेटली तो आपके सारे डिजीजेस, आपके सारे एंजाइटीज, आपके सारे प्रॉब्लम्स, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, वो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। Yes. ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं खुद मैंने देखा है कि मेरा जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू था, जो 15 साल से मैं सफर कर रहा था, उसको मैंने सॉल्व किया by including red rice varieties in my diet on a daily basis. और आज भी जब मैं 4 दिन के लिए अगर व्हाइट राइस खाता हूँ, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, IBS होता है। Problem is in our society, people don't discuss shit. I'm sorry for mentioning this, but लोग डिस्कस नहीं करते हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यू को डिस्कस नहीं करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, लोग डिस्कस नहीं करते हैं। बट इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने सबसे ज्यादा 70% ऑफ योर the large ingredient on your plate is rice. अगर आप राइस को बदलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को मेडिसिन से अलग कर सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो टैबलेट पे आएंगे, जो टैबलेट पे है वो पूरे डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे BP, थायराइड, डायरिया, हर चीज के लिए राइस है जो सॉल्व कर सकता है आपके प्रॉब्लम को। यस, इट्स सो नाइस। आपने बात करी कि आप भाव से अगर खाएंगे ना, तो हमारे संस्कृति में ही अन्न को हमने नारायण माना है, कहते हैं अन्न नाम नारायण, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो। ये भगवत गीता में लिखा है कि जो ग्रेन है, द फर्स्ट विजिबल गॉड इज द ग्रेन। जो हम भोजन को प्रसाद मान के खाते हैं ना, तो हम जूठा भी नहीं छोड़ पाते, और उस भाव से जब ग्रहण करते हैं, तो उसका खाली जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वही होता है हमारे शरीर पर। और ये मानी हुई बात है, तो समय ने सत्यापित किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रामायण में एवरी टाइम आई कोट दिस, आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं जाके वो श्लोक देखूंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है रामायण में। बट दैट आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस द बोली बदल जाती, मतलब द लैंग्वेज चेंजेस, the attire changes, the taste of the water changes, the fertility in the soil changes, the grain will change, the cows will change, so many changes after certain distance। इसीलिए भारत के हर डिस्ट्रिक्ट की भाषा अपनी है, लोकल है। जैसे मैं बिहार आता हूँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट की भाषा एक है, कहीं की, कहीं वज्जिका है वैशाली की, कहीं मैथिली है मिथिला की, भोजपुरी है भोजपुर की तरफ की, फिर मगधी है उधर की।
नॉर्थ कर्नाटक में चले जाओ साउथ में अलग है, लाइक दैट द काउ चेंज एंड ग्रेन आल्सो चेंजेस। कहते हैं अभिलाष जी कि यहाँ तंजावुर के आसपास में 3-4 वहां एक गुरु हुआ करते थे पेशे से, एंड ही वाज अ राइस ग्रोअर। तो वो जो गर्भावस्था का पूरा समय है, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू द डिलीवरी, फॉर एवरी स्टेज ही हैड गिवन अ राइस। जैसे अभी डॉक्टर के पास जाते हैं हर महीने ना, तो चेक करने के लिए, तो कभी वो स्कैन करता है, तो कभी ये दवाई देता है, कभी वो प्रोटीन देता है, कभी उसके लिए एक स्टेज के लिए एक राइस। एंड आई हैव मेट पीपल और एक सबसे शॉकिंग इन द सेंस ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज, जब आश्रम में हमने एक बार सीड का महोत्सव किया था, बीज महोत्सव, चावल लेके आया जो अंकुरित हुआ पड़ा था। Like when you soak the black gram, it germinates under the water after 24 hours. I didn't see any rice which is germinated. क्योंकि राइस को जब धान को लगाना हो तो छिलके के साथ लगाते हैं, तब वो जर्मिनेट होता है। हम छील के नहीं लगाते उसको, you don't peel the husk, and then I saw that small tiny grain rice, and it was germinated, and this is a unique variety nowhere available in the world. लेकिन गड़बड़ी क्या आगे, what I wanted to tell, अभी ये चैट में किसी ने लिखा, नॉर्थ में कहते हैं ज्यादा चावल खाओ किडनी स्टोन हो जाएगा सच में। चावल खाओगे ना जो आंखों को अच्छा लगता है देखने में, तो किडनी स्टोन क्या और भी बहुत बाकी चीजें होंगी। ये राइस या किसी भी ग्रेन की बात कर रहे हैं, वो अपने नेचुरल फॉर्म में है, वो पॉलिश नहीं है। मैं आज अक्षत खरीदने गया दुकान में, अक्षत समझते हैं, द अनब्रोकन राइस, जिसका विनाश है अक्षत। तो अग्निहोत्रा के लिए चावल खरीदने मैं 3-4 दुकान गया कि भाई मुझे रॉ राइस दे दो जो अनपॉलिश्ड हो। 4 दुकानों में, बड़े बड़े दुकान थे, मॉल्स, नहीं मिला। बोला भैया आता ही नहीं है। और वो जो पॉलिश किया हुआ है ना, जो पॉलिश चढ़ाई ना, जो व्हाइट इज द कलर ऑफ अट्रैक्शन, राइट फ्रॉम बेटे के लिए बहू ढूंढने जाओ या भोजन के लिए अनाज खरीदने जाओ, हर जगह जो पॉलिश चीजें लाते हैं ना, गड़बड़ी वहां पर है। सो वी शुड नॉट सिट and crib about the grain itself. अन्न के ऊपर दोष नहीं, धरती की उत्पादक शक्ति के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, उंगली नहीं उठाना चाहिए। धरती अभी भी दे रही है। हम जब उगाने करते हैं, you must remember Abhilash, when we are talking in our courses कि the fertility in the soil is still, even after 70-60 years of bombarding the chemicals and pesticides, एक बूंद से एक इंसान मर सकता है, एक जीव की हत्या हो सकती है, और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टन्स we have pumped into the soil, still the soil is having the capacity and capability to germinate the seed in its purest form. हम इसीलिए धरती को मां कहते हैं। तो प्रॉब्लम, समस्या अनाज में नहीं है, समस्या है उसको जो बेचने के लिए हमको दाम भी ज्यादा मिले, पॉलिश मिलाते हैं, और वो पॉलिश जो है ना, जो पाउडर है, वो जहरीला, उसको एडिबल नहीं है, लेकिन वो पॉलिश मिला के महंगा भी कर सकते हैं, पैकेजिंग अच्छे से करते हैं, लोग खुशी खुशी ले भी जाते हैं। और जो हम बिना पॉलिश वाला खरीदने गए, तो आजू बाजू से 1-2 आदमी ऐसे देख रहा है, भाई गरीब आदमी, उसके पास पैसे नहीं है, सस्ता वाला चावल ढूंढ रहा है। दिस इज द स्टिग्मा in the society, that is where we fall prey to all those advertisement and all that. तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था कि किडनी स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन होता है जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है ग्रेन के क्वालिटी में। ह्यूमन इंटरवेंशन होता है केमिकल के रूप में, जो क्वांटिटी में, उगाने के स्तर पर जब हम अपनी दिमाग लगाना शुरू करते हैं, when we don't keep it in the purest form, then comes the disease, तब आता है अस्वस्थता या बीमारी। प्योरेस्ट फॉर्म में किसी अनाज से बीमारी नहीं हो सकती। होता तो फिर देखो ना, मतलब कैसे, फिर और क्या करोगे अगर अनाज से बीमारी होने लगी, तो फिर और क्या करेंगे? भैया जी आपने हाँ भैया जी, आप, सॉरी टू कट अक्रॉस, आपने बोला कि जो बीज राइस से अंकुरित हुआ, नवारा राइस एक ऐसा राइस है जो, अगर आप देखेंगे कोई भी अदर वैरायटी ऑफ राइस आप उठाएं, अगर राइस टुकड़ा हो जाता है तो उसमें से अंकुरित का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, इट कैन नॉट जर्मिनेट। बट नवारा में ऐसी जीव शक्ति है, इट हैज सच काइंड ऑफ जीव शक्ति इन इट, दैट इवन द राइस, द नवारा राइस विच इज ब्रोकन ऑल्सो, उसमें से भी अंकुरित जो प्रोसेस है वो होता है। सो सच काइंड ऑफ जीव शक्ति, पीपल इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड आर so obsessed with calories,
but not about the chemicals. People are interested about people are not interested about nutrients in it. People are not interested about the soil fertility. ये कहाँ पे उगाया है, कौन से soil में उगाया है, कौन से वेदर में उगाया है, कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में उगाया है, इन सब चीजों पे कोई बात ही नहीं करता है. हमको सोना मसूरी राइस चाहिए जो एक हाइब्रिड राइस है, ले लो, खा लो, पेट भर लो. लेकिन उससे सिर्फ पेट भरता है, सेल का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भरता नहीं. इसीलिए आपको हर 2 घंटे, हर 1 घंटे में भूख लगती है, और ज्यादा से ज्यादा व्हाइट राइस खाने के बाद आपको नींद आता है. यू ईट व्हाइट राइस इन ह्यूज क्वांटिटी एंड यू विल स्लीप फॉर एवर, Yes. in stages. So धीरे धीरे आपका जो बॉडी है वो भी डिप्रिशिएट होता रहता है. छोटा छोटा आपको प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं. उसमें फाइबर कुछ होता नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है. और एक बार तो मैं एक मिल वाले से मिलने के लिए गया, और पूछा मैंने कि भाई आप इतना पॉलिश क्यों करते हैं. जब आपको मालूम है कि विदाउट पॉलिश वाला जो राइस है, और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूट्रिशियस है हमारे बॉडी के लिए, तो आप उनको पॉलिश क्यों करते हैं. तो वो उन्होंने मुझे बोला कि डिमांड जो आएगी हम वही करेंगे. हमको डिमांड से मतलब है, हमको पैसे से मतलब है. डिमांड है पॉलिश राइस का, हम वही पॉलिश करते हैं. तो मैं उनसे पूछा कि भाई ये जो पॉलिश करने के बाद करते क्या हो उसका. तो बोलते हैं कि भाई ये तो हम बेच देते हैं. मैंने पूछा किसको बेचते हो, whom do you sell it to? After you polish the rice, whom do you sell it to? He said there are lots of companies who come to buy this particular malt, which is used in different protein drinks and other stuff. So as a consumer, we are paying double. एक बार polish करने के लिए, और फिर उन चीजों को, that malt what is washed away, उसको फिर हम लोग अलग अलग प्रोटीन पाउडर्स में यहाँ पे वहां पे उसको हम कंज्यूम करते हैं. तो एज अ कंज्यूमर वी आर पेइंग ट्वाइस. यस. ये खाली मतलब राइस तो एक एग्जांपल था. मतलब ऐसा नहीं है कि राइस खा के हम रह लेंगे. तो आप देखो, आज मैं दुकान में था, अपनी दुकान में, सब्जी की दुकान में, तो वहां पर एक कुसुम का साग था. कुसुम का एक साग होता है, हिंदी में कुसुम कहते हैं, अलग अलग जगहों पर इसको कन्नड़ा में सीलन बसले कहते हैं. वो किडनी की एक जबरदस्त दवाई है. अब वो माय एजेड मदर्स, लाइक दोज हु आर इन 50s, वो पूछ रहे हैं कि हाउ डू आई कुक इट. माय गॉड, इज देयर एनी अदर वे ऑफ कुकिंग अपार्ट फ्रॉम पुटिंग सम हॉट पैन. आपको क्यों लगता है कि पालक को पकाने के लिए कुछ दूसरा बर्नर चलाना पड़ेगा और कुछ और पकाने के लिए कुछ और. अरे ये प्रश्न पूछ के जो इजी टू कुक होगा, जो इजी दिखेगा, जो फ्रेश, ये सब करके ना हम वी kill the naturalness and originality of vegetable products. हम बात कर रहे थे अभिषेक, if you remember, before that, Nutan ji, how much time do we have? We have time, sir. We have time. We are talking about कि क्या था, मैं भूल गया. हाँ, the habit of cooking, the very idea of cooking. हमने हर चीज को फैशनेबल बना दिया. जो हम धारावाहिक में देखते हैं, सीरियल्स में, मूवीज में देखते हैं कि वो लोग कैसे, अंग्रेज लोग ना, वो चाकू और चमचा और काटा लेके बैठते हैं, और टेबल पर वो सब लिया और फटाफट वो सबके सामने के, कोई परोस के नहीं खिलाता, बीच में रख दिया, बस वो ले रहे हैं. हमको लगा ऐसे खाना है भाई, ऐसे खाओ ना. इस जमीन पर क्या बैठ के एक जो सबको खिलाएगी, फिर वो बाद में 3 बजे शाम में खाएगी, ऑल दैट. और उसी करते करते हमने कुकिंग के हैबिट्स को भी बदल दिया. हमने बदला अच्छा है, लेकिन की तरफ होना चाहिए. The change is good, but it should always into the better side. But we degraded the idea of cooking. The pans and that we use, the metals that we use. हम सब पढ़ा है केमिस्ट्री, हम पढ़ा है फिजिक्स, बायोलॉजी, everything. Why do we forget that every metal, when it is heated, it releases some ingredient that it is made up of? लोहा वाला लोहा रिलीज करेगा, एल्यूमिनियम वाला एल्यूमिनियम करेगा, ऐसे ही करेगा. अब जब एल्यूमिनियम के बर्तन को हम यूज करने लगे, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट को डोंट वी नो? वी नो इट. हम जानते हैं कि भोजन को जो पकाया जाता है उसमें ऑक्सीजन और सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा हाथ होता है. Every food to be cooked and give you nutrition, the sunlight and oxygen has to be present. Now tell me, if a pan is एयर टाइट लाइक प्रेशर कुकर, और उससे जो गैस निकलता है उसके ऊपर भी एक ढक्कन रख, एक छाता रख दिया, वेयर डज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर? वेयर इज द एब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर? जब बोलो कि भाई प्रेशर कुकर का खाना पकता नहीं है, वो टूट जाता है.
टूट जाता है। It's not cooked, it is broken. And just because it's softer to our teeth, हमको लगता है पक गया, ये पका नहीं, जल गया है। तो कहते हैं लोग, जो माताएं खाना होते हैं, यार ये प्रेशर कुकर से ना समय बचता है। समय तो बचता है, लेकिन बचे हुए समय का करते क्या हो, वो तो पूछ लेते। What do we do with the time that we save? And we think कि 3 वेसल लगाने से पक जाता है। 3 वेसल से नहीं पकता, उसके बाद 15 मिनट वेट करते उसको ठंडा होने के लिए। और जल्दबाजी 5 वेसल लगा दिया तो पता चला कि गीला रह गया या जल गया अंदर। All that circus happens. Why is that? We are running short of time when it comes to cooking, and we are running shorter time when it comes to eating. सारी जल्दबाजी, जल्दी खाओ और चलो। क्यों जल्दी खाओ और चलो? बिना भोजन कुछ नहीं होगा। So it is a multi-dimensional approach, and in last webinar when we are talking about the success story, हमने हमारे मित्र को लाया था दिल्ली से, इनका छत पर एक बहुत बड़ा गार्डन है। The kind of impact that growing your own food creates in different dimension is like unimaginable. वो मुझे भी नहीं ये सब पता था जो उन्होंने बताया। And why I wanted to talk about the growing aspect of food is you cannot grow everything. Yes. You can grow something, but that growing something gives you lot of ideas. Yes. What is really going? Why is that taste का इतना difference? हमने घर में जो पालक उगाया और जो बाजार से ऑर्गेनिक का जो छाता लगा के लेके आए ना, उसमें भी स्वाद में इतना है क्यों? तब होता है जर्नी। I mean, correct me if I'm wrong, अभिलाष जी, कि somewhere that clicked you also, like अपना उगाया हुआ भोजन और बाजार में लाया हुआ, why is that so much of difference? क्योंकि जो डिस्टेंस है फार्म टू फोर्क का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले अपने मौसी के पास गया था, जो एक छोटे से विलेज में रहती हैं। मेरे जो मौसा जी हैं वो एक शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्वार्टर्स में रहते हैं। तो मद्दुर और मंडिया के बीच में एक छोटा सा गांव है, कुप्पा KOPP है। तो वहां पे गया मैं, तो देखा वो लोग उनके बगीचे से उन्होंने रॉ बनाना जो है वो तोड़ा और इमिडिएटली पकाने के लिए लेके आए किचन में। तो मैं तो देख के अचंभित हो गया, भाई इतना स्वादिष्ट, इतना जब मैं काट रहा हूँ उसको तो मन जो है, मन में जो प्रसन्नता उभर रही थी कि भाई शायद आई थिंक 10-15 साल हो गए मैंने ऐसा रॉ बनाना देखा नहीं मेरी जिंदगी में। इट वाज सो फ्रेश, इट वाज वेरी गुड, इट वाज न्यूट्रिशियस। देख के मेरा मन जो है प्रसन्नित हो रहा था। तो आपका जो डिस्टेंस है फार्म टू फोक का, वो बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं कब किसान भाई और किसान बहन ने जो है उसका हार्वेस्ट किया, फिर वो मंडी जाता है, मंडी से छोटी छोटी मंडियों में आता है, फिर वो ठेले पे आता है, ठेले से वो डायरेक्टली आपके सुपरमार्केट्स में या फिर आपके गली में आता है, गली से आपके पास आता है, आपके पास से वो फ्रिज में जाता है, फ्रिज में जाने के बाद वो 5-7 दिन के बाद फिर आपके टेबल पे या आपके कुकिंग वेसल में आता है। तो बताइए, इतने में तो उसमें उसकी कोई जीव शक्ति बची ही नहीं। There is no Jiva Shakti in that particular vegetable or fruit or whichever ingredient that you are trying to have. When there is no Jiva Shakti in the kind of food what you are having, what will your health be with that? मरा हुआ चीज खाएंगे तो मरा हुआ ही बनेंगे। जितना ऐसा हुआ अभिलाष जी, ट्रैफिक में सब लोग होते हैं ना, तो हमारे बगल में ही ट्रैफिक पुलिस खड़ा था, एंड सम डाउन द लाइन ही इज एन इरिटेटेड, वो पूरा दिन वही देखते, तो वो बोल रहा है कन्नड़ा में, जाना कहाँ है पता नहीं लेकिन सब लोग हैं। सब लोग जल्दी में है, वही हो जाता है जल्दी के चक्कर में ना। अब मतलब हम लगता है कि फ्रेश खरीदो तो जल्दी से वो ले आएंगे, जल्दी मिलना। अरे देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस। फ्रेश वेजिटेबल मिलना या इज नेवर फ्रेश। और मैं अपनी ट्रेनिंग देता हूँ, कल ही हम एक बियॉन्ड प्रोग्राम खत्म कर एडवांस वाला, उसका जब होता है तो वी टेक देम टू डिफरेंट फार्म्स ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड those who have started attending our programs, तो वहां ले जाते हैं। तो we had invited a farmer, a typical tribal guy who had ocean of knowledge about making the natural pesticide, the seed savings and growing different varieties on a shamelessly simple way, on a slope. तो उसको लाया था, तो बोलता ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಲಿಫಿಗಳು ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ फ्रेश ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು परचेज ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ। मतलब वो कह रहा था कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए
कि सब पत्ते वाली सब्जियां ना फ्रेश नहीं खरीदे, जो फ्रेश दिखता है वो खरीदें, ये फ्रेश वाला फ्रेश नहीं होता है। उसने बताया कि ऑल ओवर कर्नाटका दैट ही हैज सीन, कि जहां से सेंट्रली जहां से उगता है ना, देखो अभी क्या हो गया, हर चीज सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ से उग के कोयम्बटूर से सब्जी वहां जाएगी तो गाजियाबाद से वहां दिल्ली में जाएगी, तो ये सब कुछ जहां से लीफी वेजिटेबल्स जाता है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और ये सब में, तो वहां पर एक केमिकल है कि मरी हुई पत्ती है कोई भी, उसके ऊपर ना ऐसे छिड़कते, जैसे वो देखो मंदिर में कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो तीर्थ का जो होता है वो बड़ा उस तरह से कुछ एक केमिकल स्प्रिंकल करते हैं, और मरी हुई सब्जियां ना ऐसे 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 हो जाती है, और वो 4-5-6 घंटे के लिए एकदम ऐसे रहेगी टाइट। हाँ, मतलब निकाला और मेरे लिए वेट कर रहा था, अरे अब जहां खेत थोड़ी ना, सो लाइक दैट multiple things what has gone wrong, because as a consumer we don't do our research, we don't ask the right kind of questions, the logical question of growing and harvesting, because we have lost that idea itself। हमको लगता है पैसे कमा लिए बाकी हर चीज खरीद लेंगे, डोंट वरी। पैसा फेंकने से अच्छा खाना नहीं मिलता है, पैसा फेंकने से अच्छा खाना नहीं मिलता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। वहीं पर आपको द बिट ऑफ ग्रोइंग प्रैक्टिसेस एट होम दैट कम्स हैंडी। हर चीज का ज्ञान ना बड़ी इजीली आ जाता है। दैट इज आवर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 1 decade। लोगों ने जब उगाना शुरू किया नो, आवर होल यूज्ड टू टेल मी द फर्स्ट 1 साल जब हुआ इनके यहाँ पहला जब बारिश हुआ कंपोस्ट बनाने के बाद, बोले सर केंचुए ना हमारे घर के अंदर घुस रहे। आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन। अभी क्या करूं, इनको नहीं see any time। एक छोटे टाइनी शहर का जो घर है उसमें कितना बड़ा गार्डन होगा, उसमें से कभी केंचुए नहीं दिखा, बारिश में भर भर के घुस रहे। और ये पुराने समय में चीज में जब हम लोग पैदा हुए थे तब घर में बारिशों के समय केंचुए आ जाते थे घर में, हमारे आंगन में। अब वो नहीं दिखता। जस्ट बाय हैविंग सम natural practices in place, some ingredients, some waste here and there, bringing them at right place in a right way at right time, earthworms come. That means your soil has become fertile. That also means anything that you throw will grow like anything with a lot of quality, quantity, anyways it will come। धरती माँ है, वो किसी का कर्ज नहीं रखती, डाके देती है मल्टीफोल में। so nice that you touched on all that। why is that awareness is needed? I really understand वो चावल की सारी वेराइटीज को जानने का बड़ा ये है, क्योंकि बीमारी हमारे हर घर का हिस्सा बन गई है। दैट्स अ सैड स्टोरी। डू नॉट टेक इट पर्सनली, बट इंडिया में कहते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं जहां बीमारी के नाम पर एक मोटा रकम नहीं जाता हो साल में एक बार। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंडेंसी हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गई। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एवरी पर्सन, एवरी फैमिली ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो डिपेंडेंसी एक लॉजिकली हम उसको कह सकते हैं, प्रैक्टिकली सही है। डजंट मीन दैट वी टॉस अराउंड आवर हेल्थ बेसिस दैट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ का इंश्योरेंस ग्रेन से आता है। तो what we wanted to convey here in this conversation is that you become aware, do your research, and such simple technique that Abhilash ji gave, that 20 लोग 25 लोग मिलके आपकी सोसाइटी के जमा हो जाओ, एक आउटिंग में जाओ। जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री है निशा दीदी, वो 40 लोगों की घूमने एक साथ, ऐसे ही आप 20-25 फैमिली मिलो, गाड़ियां उठाओ, किसी भी शहर से बाहर जाओ, ट्राई ट्रेवलिंग आउटवर्ड 20-30 किलोमीटर। आई एम श्योर इंडिया में या दुनिया में किसी भी शहर में हो ना, 20-30 किलोमीटर के बाद यू विल लैंड अप इन अ फार्म। शाउट इट आउट लाउडर। कोई है, यू विल मीट अ फार्मर, हैव अ डील विद हिम कि पैसा जो तुम चाहो, क्वालिटी जो हम चाहे, एंड दैट्स इट। आई टेल यू, यू विल बी पेइंग लेस, still the farmer will be gaining more than what he is getting, by selling it to the middleman and all that। तो हमारा नहीं भैया जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई गवर्नमेंट, कोई देश, कोई कुछ जादूगर कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। तो हर आदमी को अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना है। तो अगर आप अपने फार्मर, अपने गौशाला को नहीं ढूंढेंगे, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। तो मैंने तो वही किया, किसी के पास नहीं गया सोल्यूशन ढूंढने के लिए। मैं हर वीकेंड अपने फैमिली के साथ या एक और फैमिली के साथ हर वीकेंड मैं 20-30 किलोमीटर दूरी पे, 40 किलोमीटर दूरी पे यही ट्रैवल करता था। वही एक फार्मर है, उसको फोन किया मैंने,
फोन किया, भाई आप क्या काम करते हैं, पता किया, डायरेक्टली गया, लोकेशन पे गया, उनसे बात किया, काम किया उनके साथ। शायद अगर मैं अकेला जाता हूँ तो एक रात रुकने की कोशिश करता हूँ मैं वहां पे, एक रात एक दिन रह के वहां पे उनके साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। तो समझ में आता है कि भाई वो जो किसान है उसके मन में क्या है, क्यों वो केमिकल फ्री उगाने की कोशिश कर रहा है, उसकी भावनाएं समझ में आती हैं, उसका दर्द Yes, समझ में आता है। तो yes. जब when that person is when that person is working with the purpose, then it is evident in his work as well. तो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा वो, आज या Yes. कल में छोड़ने वाला नहीं है। वो दर्द से उभरा हुआ इंसान कभी चीज नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल। वो दर्द से पीड़ित है, इसीलिए उसने केमिकल फ्री फार्मिंग को उठाया, काम किया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर 20-30 फैमिलीज, मैं तो बोलता हूँ कि 10 फैमिली, बड़े बड़े सोसाइटीज हैं, 400, 500, 1000 घर है, उसमें से 10 लाइक माइंडेड फैमिलीज, 10 लाइक माइंडेड फैमिलीज, अगर हर आदमी एक आदमी एक घर से कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल पे काम करेगा, तो उस फार्मर को 10 फैमिलीज अगर 2000 या 2500 भी देते हैं मंथली, तो 25-30 हजार तो वहीं पे हो गया। तो अगर आप एक फार्मर को 25-30 हजार रुपए देंगे, और वो अगर फार्मर उसके पास 5-10 एकड़ जमीन है, तो क्या वो आपके लिए उगाएगा? नहीं, डेफिनेटली उगाएगा। 25-30 हजार एक फार्मर के लिए एक महीने में बहुत बड़ी रकम होती है, अरे बहुत बड़ी। अभिलाष जी, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। yes, you pinch that, poke that right, angle. लाख रुपए के लिए हम अपनी नौकरी बदल लेते हैं। 20-25 हजार के लिए हमारे लिए गोबर से या नेचुरली उगा के नहीं देगा। ये एकदम एकदम सही है। हम जब एडवांस परमाकल्चर सिखाते हैं ना, तो जब हम गाय की बात करते हैं, तो हम उनको एक होमवर्क देते हैं कि गो, नो मैटर वेयर यू आर, किसी भी शहर में आप रह रहे हो, कलकत्ता में हो, कहाँ, बॉम्बे में हो, गो एंड विजिट ए गौशाला एंड देन कम नेक्स्ट वीक। वीकेंड में हमारे यस, एडवांस वाले 6 हफ्ते के। यस, So far no one has failed. I think I'm the Sandesh is here, for the current batch, and many people I see. लोग ना आंख में आंसू लेके आते हैं कि I was in Raipur for I am born and brought up and I never knew that there is a गौशाला which is running for 150 years. बॉम्बे जी, में ने बताया था कि हमारे घर के पीछे ही था गौशाला भैया, we never knew, हम तो लगता पैकेट में यहाँ। So, this kind of, things you eventually come to know when you are pushed, when you pay for something, और जब जो होमवर्क मिलता है और जब वो करते हो ना, तो बहुत सारी इंद्रियां खुलती हैं। That is what we do. जी, इसीलिए हमने जो ये पता है अभिलाष जी, when the lockdown hit us, this COVID time and everything, अब what we teach, like जो हम होम ग्रोन होम कुक की बात करते हैं, हमारा ऑनलाइन चलता था, I mean ऑफलाइन चलता था, एक दिन सुबह से शाम एंड ऑल दैट। जी, जी, तो बहुत सारे ये आने लगे, क्वेरीज की, दुनिया जूम पे जा रही है, इट वाज ए फैशन की जूम लिंक है क्या, हाउ डू यू हैंडल। तो बोलते कि अरे आप भी जूम पर सिखाओ। बोले यार कैसे ये प्रैक्टिकल टीच, सो ग्रोइंग द फूड, बीज को मिट्टी के अंदर डालना होता है, जूम पे कैसे करेंगे। then lot of pressure, or more than 160 or almost around 200 people were calling and having this. I took 3 months to design that with our team and all. जी, And when we started, I tell you, it has gone so successful that June 2020 से लेके अभी तक, it has become so regular. और उसके जो results, we have more than 20 or 30 people who have purchased the land, crores जी, खरीदा है, बहुत लोगों ने गाय ले ली। I'm not boasting about our achievement. What I'm trying to tell you is that when you are, when the information is thrown at you, when the knowledge is given to you in a right way, in a right platter at right time, then it brings a, and this change is for good. It is for the health of your kids, if not for you, because we all might be dead by another 30-40 years. लेकिन जो आज जो 4-5 साल का पैदा हुआ ना हमारे घर में, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो, his health should be like our ancestors, वो शरीर और मन से शुद्ध हो, मजबूत हो। तो उसके लिए भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान रखना और उसको सिखाना पड़ेगा। इट्स अ लाइफ स्किल माय डियर, इट्स अ लाइफ स्किल। ग्रोइंग द फूड इज अ लाइफ स्किल, लाइफ लर्निंग स्किल्स, लाइफ सेविंग स्किल्स। 16 कलाओं में ये सभी एक कला है। कुकिंग इज ए स्किल। इसीलिए हमने जी, अपने कोर्स का नाम ही दे दिया होम ग्रोन एंड होम कुक्ड, क्योंकि उगाना छूट गया और अब कुकिंग भी छूट रहा है धीरे धीरे। छूट रहा है। हर गली में जो स्विगी वाला घूम रहा है, वो क्या लगता है आपको, क्या है वो, कुकिंग कम हो रहा है। इसलिए हमने इस तरह से शुरू किया, एंड वी कीप sorry, we keep bringing our staff, those who have done, who have brought the
change in real time, in real life, not to their family, but Abhilash का जो है ना, जो इनका reach है, he has reached to many farmers, authentic ones, shown them the money, shown them the business by connecting them directly to the consumers. और ये एक आदमी के बस की बात नहीं है. We have limitation in this physical body. We all have. जी विनय भैया, मैं वही बोल रहा था कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं बनने वाला है. हर 20 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर की रेंज में एक ऐसा वॉलंटियर या 20-25 फैमिलीज की कम्युनिटी खड़ी होनी चाहिए जो अपने फार्मर से 50-60 किलोमीटर की दूरी के जो फार्मर्स हैं उनसे मंगाए. अब बैंगलोर जो है वो 60 किलोमीटर का रेडियस है. अब 60 किलोमीटर का रेडियस में अगर आप हर एक ही जगह से मंगाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा. यू आर इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट. तो अगर हर कोने में 20-25 फैमिलीज अगर फॉरवर्ड आए, अपने फार्मर को खुद ढूंढे, नो योर फूड, नो योर सोर्स, अगर वो काम करेंगे तो हर कोने में वृद्धि होगी, हर कोने में सफलता होगी, हर कोने. Sorry, Abhilash ji, somehow you got muted. You unmute yourself. हाँ, तो हर जगह हर बैंगलोर के हर छोटे 5-10-15 किलोमीटर के रेडियस पे ऐसी कम्युनिटीज का होना बहुत जरूरी है जो स्वावलंबी होके, इंडिपेंडेंट होके अपने कम्युनिटीज के लिए, अपने फार्मर्स के लिए काम करें. ऐसा नहीं कि जियो मार्ट से मंगा रहे हैं या फिर गौस्तुति से मंगा रहे हैं, कहीं से मंगा रहे हैं. मुझे एक ऐसा मॉडल चाहिए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो. हर फार्मर को, तुमकुर की तरफ बहुत सारे फार्मर्स है, कनकपुरा रोड की तरफ बहुत सारे फार्मर्स है, होसुर की तरफ बहुत सारे फार्मर्स है. हर फार्मर को अपना शेयर मिलना चाहिए, अपना शेयर ऑफ 20 फैमिलीज मिलना चाहिए, और वो उगा सके, अपने कंज्यूमर्स को खाना खिला सके. कंज्यूमर्स हैव टू बिकम मच मोर रिस्पॉन्सिबल. दिस इज अ रेवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स, टू बी ड्रिवन बाय कंज्यूमर्स, टू बी रीच्ड बाय कंज्यूमर्स. अगर कंज्यूमर्स के दिमाग और दिल और दिमाग में अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, अगर वो अपने हाथ में बेड़ा नहीं उठाएंगे, if they will not take things in their own hands and try to solve this problem, no one is going to come to save our ship. Yes. That is the point. Yes. I know here at the campus where I stay as a full-timer, by the grace of our master, Gurudev Shri Ravi Shankar ji, when we designed and when we show him the syllabus, somehow, I don't know, it's the grace of, again I repeat, and I don't get tired of, talking, praising the master. At his feet, when I decided and designed the things, every aspect of this, what we are talking today, fortunately, we got into the course. Okay, you get enriched with the awareness quotient. क्या गलत हो चुका है, that's problem statement. Like जब project बनाते तो लिखते हैं ना problem statement, solution, and then we give the practical solution. And our community is becoming so rich by many Abhilash in Uttarakhand, in Punjab, here in Karnataka, in some in Chhattisgarh, then in Bombay. Many people are coming yes, and enriching the community of whatever number we have today. Thanks, Abhilash. I think it's time up. It's 9:35. It's almost an hour when we started. Nutanji, if we have, our community has some question or something, you want to open the forum for that, then please take over and give vote of thanks and all that formality. Thank you everybody. आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए. 7:30 का वक्त था हमारा, मैंने उसको 8:30 कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा हमारा शेड्यूल टाइट चल रहा था. तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू वर रियली फ्लेक्सिबल, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अलग अलग टॉपिक्स में बात करने के लिए और जागरूक होने के लिए. हर इंफॉर्मेशन मिलना एक पार्ट होता है. if you are not speaking, then keep लगता है डिनर का वक्त हो गया है, इसलिए अनम्यूट हो रहे हैं. कुछ चीजें मैं आज आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. अभिलाष जी ने आज बताया और जो विनय जी ने उसकी स्टेटमेंट्स की पूर्ति की है कि एक तो अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आप सुने हैं तो Sorry, Nutan, unmute yourself. Nutan, unmute yourself.
I have muted everyone. Thank you. So there are few things मैं summarize करना चाहती हूँ आज के सेशन के लिए, जो आप अपने you can take it as takeaways. एक पहली चीज ये है कि आपके घर से कौन जा रहा है जो सब्जी और ग्रोसरीज लेके आता है? आप हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हाउस हेल्प है। वो इंसान के हाथ में सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपकी फैमिली की हेल्थ है। तो क्या वो पर्सन इक्विप्ड है इंफॉर्मेशन से कि कहाँ से वो घर का सामान, खाने का सामान आना चाहिए? तो ये आपका पहला है कि वहां जागरूकता दिखाइए। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो कॉन्शियस बाइंग करिए। देखिए कि अब जो खरीद रहे हैं उसमें क्या है। रेडीमेड कितना खरीदते हैं अपने टोटल ग्रोसरीज में, कितना फ्रेश खा रहे हैं? जब पनीर में फ्रेश पनीर लिखता है और जाके हम ले आते हैं तो सोचिए वो फ्रेश पनीर कैसे हो सकता है? ये सवाल पूछना शुरू करिए। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रहे हैं, माँ बाप का काम है कि वो अपने आप को एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें। जब एक जनरेशन मिस कर देता है ये इंफॉर्मेशन आगे पास करना, तो आगे के कई जनरेशंस खराब हो जाते हैं हेल्थ के मामले में। तो हर जनरेशन का काम है कि जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है और जो वो खुद एजुकेट और हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। तो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ना रहने दीजिए, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करें ताकि हमारे फैमिली का स्वास्थ्य हमारे कंट्रोल में रहे। पिछले वेबिनार में हमने बताया था कि कैसे जब आप कंपोस्टिंग करते हैं और किचन वेस्ट की मिट्टी बनाते हैं तो उसमें और खाना उगाते हैं, आप खाते हैं, तो कैसे आपने मिट्टी का कंट्रोल मतलब कि स्वास्थ्य का कंट्रोल। तो वही चीज हम आज अभिलाष जी को लाके ये बताना चाह रहे हैं कि अगर वो चाहते तो डॉक्टर उनको कहता है कि हाँ लैक्टोस का प्रॉब्लम है और वो बच्चों के दूध देना बंद कर देते, पर एज ए काबिल पेरेंट को जाके पता लगाया कि ऐसा क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पिए जा रहे हैं दूध ना बचपन से, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा बच्चा नहीं पी सकता? और पता लगाने के बाद अब देखिए उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है और वो वहां नहीं रुके, उन्होंने कम्युनिटी बनाई और आज हम इतने सारे लोग उनको सुन रहे हैं। तो हर बंदे की कोशिश से हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें हम ग्रो कर सकते हैं और कुछ चीजें हमें खरीदनी पड़ेगी। जो चीजें हम ग्रो कर सकते हैं वो करिए, चाहे वो एक आइटम है, 2 है, 3 है, 4 है। जब आप वो ग्रो करना शुरू कर देंगे ना अपने बैल्कनी में, अपने गार्डन में, तो आपको लगेगा कि अगले साल आपने 5, 6, 7 और कई और चीजें आप सीख लेंगे। जो चीजें आप उगा नहीं सकते और आपको खरीदने जाना है उसके बारे में आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। क्या मैं कहाँ से ले रहा हूँ, क्या ये सही है? हम नहीं सोचते हैं कि आज इमीडिएट चेंज हम ला सकते हैं। हमें नहीं पता आसपास के दूध कहाँ आएगा, मेरे को तो पैकेट का दूध ही लेना है। कोई बात नहीं, अगले महीने 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते, अगले महीने 2 महीने के बाद ढूंढिए, अगले 2 महीने में आसपास के गौशाला लाइए दूध अच्छा। आज नहीं कर सकते हैं पर आने वाले 2-3 महीने में कर सकते हैं। आज नहीं उगा रहे हैं कुछ, कल उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव लाइए। हमारा वेबिनार्स का मतलब यही होता है कि ये सारी चीजें हम आपको अवेयर करें, आप जागरूक हो और अपने लिए आप इक्विप्ड हो लेने के लिए, अपने फैमिली की हेल्थ, अपनी हेल्थ में आपके पास कंट्रोल हो। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक समथिंग फ्रॉम एवरी वेबिनार दैट यू अटेंड और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने आने वाले जनरेशन का, करेंट जनरेशन का आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज से सही माने में फ्रीडम दीजिए, वरना इंडिपेंडेंस डे आते चले जाएंगे पर हम फ्री नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है और हमें सच नहीं पता है। एंड ऐसे आपको पता है ओनली ट्रूथ सेट्स अस फ्री। ओके, इसके साथ मैं आपको छोटा सा एक निवेदन करूंगी। लिंक भेजा है मैंने आपको कोर्स का जिसमें हम बेसिक्स बताते हैं कि आप क्या ग्रो कर सकते हैं। आपको काफी लोगों ने अटेंड भी किया है, many people would have attended in the past, you can check with them also. These are basics of just growing food. If it's a balcony garden, if you have 2 pots you can grow, become a grower। सही माने में फ्रीडम हासिल करिए अपने लिए और दूसरों के लिए। आप ये कोर्स गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को भी। विनय जी ये खुद लेते हैं और काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हमारे जो ये समझाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है और हमारी जो नेटवर्क में कम्युनिटी है वो उस कोर्स के बाद सालों तक हम एक साथ रहते हैं। मैं 2020 की अर्ली बैच की हूँ, मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ और मैं कोर्स ये सारे जो प्रोग्राम्स में होस्ट भी करती हूँ क्योंकि मुझे जो फायदा मिला मैं चाहती हूँ कि काफी और लोगों को मिले। हमारा 1500 का नेटवर्क है और हमने जब शुरू किया था तो हम 50 थे। ठीक है,
तो ये मुहिम में हम चाहते हैं कि आप भी हमारा साथ दें. प्लीज जॉइन अस फॉर दिस अवेयरनेस. प्लीज सी इफ यू फील कंफर्टेबल जॉइनिंग आवर प्रोग्राम. इसमें हम आपको हैंड होल्डिंग करते हैं कोर्स के बाद काफी मंथ्स तक, और उसके बाद आपके पास इतनी बड़ी नेटवर्क हो जाएगी कि आप एक सवाल पूछोगे और 10 जवाब आएंगे वहां से. तो उम्मीद करती हूँ दैट ऑल ऑफ यू एंजॉय आवर वेबिनार्स. और आपने अभिलाष जी का आज एंजॉय किया. सच एन इंस्पिरेशन. कहाँ उनके बच्चे के हेल्थ और फैमिली हेल्थ से शुरू हुआ और आज उन्होंने इतना मुहिम कर लिया कि फार्मर्स से उन्होंने कनेक्शन करके आज सप्लाई कर रहे हैं हम जैसे लोगों को. तो मैं धन्यवाद दूंगी अभिलाष जी का कि वो आए और अपना वक्त दिया हमारे साथ. और अगर आप लोग सब हमारे व्हाट्सएप के नेटवर्क पे हैं तो वहाँ पे अभिलाष जी काफी सारे कंटेंट भेजते हैं, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं. तो राइस का जो चैट है हम वहाँ पे एक बार समराइज कर देंगे. विनय जी थैंक यू एज ऑलवेज. आपका नॉलेज तो मतलब कि अनलिमिटेड है, तो जितनी बार भी सुने मन करता है कि फिर से सुनते रहें. तो थैंक यू, आज आपने वक्त निकाला. आज आप बिजी थे पर आपने वक्त निकाला, सो थैंक यू सो मच. और सारे हमारे जो आज के ऑडियंस है, थैंक यू सो मच. इंडिपेंडेंस डे एंजॉय करिए, लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए. कोर्स का लिंक जो है वो रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है चैट पे है, तो आप चाहें तो वहां से आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स. शुभ रात्रि. Thank you so much. It was such pleasure. शुभ रात्रि. मिलते हैं अगली बार. Thank you. Very good. Thank you. Good night everybody.